Now, recently, I rode the Indian Sports Scout and I was thoroughly impressed with the riding experience and the overall pedigree on offer in the motorcycle. Now, Indian also makes this, the Scout 60 Bobber. और जो 60 नेम टैग यहाँ पे आपको सुनने को मिल रहा है, उसका मतलब ये है कि ये मोटरसाइकिल एक तरीके से रेगुलर स्काउट का एक छोटा वर्जन है। अब इस मोटरसाइकिल को छोटा बनाने में क्या इंडियन ने वही ओनरशिप एक्सपीरियंस बरकरार रखा है? क्या इस मोटरसाइकिल में भी आपको वही पेडिग्री देखने को मिलती है या नहीं? यही आज हम जानने वाले हैं। हाय, माय नेम इज ध्रुव पालीवाल, यू आर वाचिंग टाइम्स ड्राइव, लेट्स गेट रोलिंग। Now let's start with the design of the Indian Scout 60 Bobber. And being a bobber, there are some things which look really cool on this motorcycle. अब start करते हैं इस हेडलाइट के साथ। हमने जो स्पोर्ट्स स्काउट चलाई थी तो यहाँ पे हमारे को एक काफ़ी बड़ा काउल देखने को मिला था, जो कि आपको इस बॉबर स्काउट 60 पे नहीं देखने को मिलता है। You get a simple round headlamp over here. Now chopped fenders ये हमने पहले भी देखे हैं, अभी भी देखने को मिलते हैं, and this is metallic. You get a similar chopped fender at the back as well. एंड जहाँ तक कि मोटरसाइकिल की बात करते हैं, ये इसका स्टैंडर्ड ट्रिम है, जहाँ पर कि आपको जो सबसे बेस लेवल का ट्रिम है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड दिस मोटरसाइकिल इज डेक्ड आउट इन ऑल ब्लैक। नाउ मी पर्सनली आई रियली लव दिस ऑल ब्लैक पेंट स्कीम। What do you think about it? Obviously, let us know down in the comment section. Now, overall, the Bobber has a very youthful appeal to it, whereas the bigger Scout, it actually would have appealed to a more mature rider, despite having many similar design cues. Now, why is that? That's because the size of the Bobber has been shrunk a little. Now, while it's got the same length and the wheelbase as compared to the Indian Sports Scout, the Bobber over here, it is lower in height, the seating is lower, and it's also not as wide as the Sports Scout. So this motorcycle, despite featuring so many similar design elements as the bigger Sports Scout, feels a little bit more youthful, I would say, over here. Now let's see what the ergonomics of the motorcycle are like. यहाँ पे जो size difference है उसकी वजह से बैठने के तरीके में कोई ना कोई बदलाव आया है या नहीं। Now, as I mentioned earlier, the seat height is even lower at 649 mm and you sit really low. The seat feels comfortable, it's quite well sculpted and it holds the rider in quite well. But I think once you start reaching forward, even the handlebars they have placed quite neutrally और आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती handlebars को easily grip करने में। But जब आप बाइक को चलाना शुरू करते हैं और अपने पैर फुटपेग्स के ऊपर लाते हैं, that is where things are not so good as we would have expected. अब यहाँ पे होता क्या है कि जो फुटपेग पोजिशनिंग है वो फॉरवर्ड सेट तो है, बट इतनी फॉरवर्ड सेट नहीं है जितनी हमें इंडियन स्पोर्ट्स स्काउट में देखने को मिली थी। एंड उसकी वजह से आप काइंड ऑफ एक नो मैन्स लैंड में अटक जाते हैं। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि जब मैं ये मोटरसाइकिल चला रहा था, डिस्पाइट दिस बीइंग अ क्रूजर एंड अ बिग मोटरसाइकिल, मेरे को अपने सेंट्रल एरिया में, यहाँ पे एब्डोमिनल एरिया में काफ़ी क्रैम्प्ड फीलिंग आ रही थी, क्योंकि माई लेग्स वर्ंट एज फार फॉरवर्ड एज आई वुड हैव लाइक देम फॉर माई एंटायर लेग टू ओपन अप। ये थोड़ा पीछे की तरफ मेरे को ऐसे रखना पड़ रहा था, जिसकी वजह से इट फील्स कि आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं अपने मूवमेंट में और आप थोड़ी सी क्रैम्प्ड जगह में ज़रूर बैठ रहे हैं। नाउ दिस इज़ फॉर अ राइडर लाइक मी हु इज़ 5'8". So I'm guessing like riders shorter than this will definitely not feel this problem to that an extent. But if you're taller than 5'8", maybe the seating position of the Indian Scout 60 Bobber might not agree with you. Now, ergonomics aside, the Scout 60 Bobber also gives you the option of carrying a pillion with you. And that is something that we've not seen on the bigger Scout Sport. So I think that is definitely a plus. But I will have to say this pillion seat feels quite narrow, to be honest, and I'm not really sure how comfortable your pillion will be on there. Now, this seat is best used for smaller journeys, but if you're probably going on a highway cruise, we really wouldn't advise you having a pillion on the Indian Scout 60 Bobber, despite this backrest also being available for them. अब जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, जो 60 नेम टैग है उसका मतलब ये है कि ये बाइक एक तरीके से छोटी है। अब वो छोटी कैसे है? Well, the answer lies here. जो बड़ी इंडियन स्पोर्ट्स स्काउट थी उसमें आपको एक 1250 सीसी का V-twin इंजन देखने को मिलता था। अब यहाँ भी इंजन V-twin तो है, बट वो सिर्फ 999 सीसी का है। जी हाँ,
999 सीसी यहाँ पे थोड़े छोटे लगते हैं। अब यह इंजन 85 हॉर्स पावर 87 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाता है एंड इट इज ऑल्सो मेटेड टू अ 5 स्पीड ट्रांसमिशन कंपेयर टू अ 6 स्पीड ट्रांसमिशन जो आपको 1250 सीसी वाले इंजन के साथ देखने को मिलता है। So let's get to the point. ये इंजन चलाते वक्त कैसा फील होता है एंड बिकॉज I've ridden the 1250cc इंजन बिफोर, मैं यहाँ पे इतना इम्प्रेस नहीं था। अगर ये इंजन मैंने पहले चलाया होता तो हो सकता है मैं ये बात कहूँगा कि इट्स ओके। अब जो इस इंजन में पावर मिलती है, जो 85 PS की पावर मिलती है फॉर अ मोटरसाइकिल ऑफ दिस साइज, इट फील्स एडिक्वेट। जहाँ पुराने इंजन में ही 2500-3000 RPM के बाद एक इतना बड़ा टॉर्क का वेव आता था कि आप मज़े में ही रह जाते थे, यहाँ पे आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है। यहाँ पे आपको इंजन RPMs और बढ़ाने पड़ते हैं एंड स्पीड रफ्तार पकड़ने के लिए आपको डेफिनेटली थोड़ा और थ्रॉटल इनपुट देना पड़ता है। जहाँ कर कि बड़ी वाली स्काउट में आपको ये सब नहीं करना पड़ता था, आप आराम से बस थ्रॉटल घुमाइए एंड द टॉर्क वुड जस्ट कैरी यू फॉरवर्ड। सो इन दैट सेंस यहाँ पे परफॉर्मेंस में एक डिप तो देखने को मिलता है, बट फॉर अ मोटरसाइकिल ऑफ दिस साइज वो परफॉर्मेंस कम किसी भी एंगल से नहीं लगती है। बस आपको यहाँ थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस परफॉर्मेंस को एक्सेस करने के लिए। बस जो यहाँ पे 1250cc इंजन का जो एक फन पार्ट था कि थोड़ा सा ही थ्रॉटल खोलो एंड आप एकदम से रफ्तार पकड़ लेते थे, वो चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली देखने को नहीं मिलती है। नाउ आई वांट टू टॉक अ लिटिल अबाउट द राइड क्वालिटी ऑफ दिस मोटरसाइकिल। और जब क्रूजर मोटरसाइकिल्स के साथ राइड क्वालिटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज़ तो हमेशा रहता ही है। अब अगर आपने हमारा पुराना वाला वीडियो देखा है इंडियन मोटरसाइकिल का, जो स्पोर्ट्स स्काउट का, वहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि मैंने बताया था कि जो उसकी राइड क्वालिटी वॉज वेरी इंप्रेसिव स्पेशली फॉर अ क्रूजर मोटरसाइकिल। एंड वहाँ पे आपको रियर में से 76 mm का सस्पेंशन ट्रैवल देखने को मिलता था, जो कि स्काउट 60 के साथ सिर्फ 51 mm का रह गया है। जी हाँ, हार्डली एनी सस्पेंशन ट्रैवल ऑन द रियर। एंड ये चीज़ इस मोटरसाइकिल को चलाते वक्त साफ झलकती है, क्योंकि जिन गड्ढों के ऊपर से मैं बड़ी स्काउट में बहुत आसानी से जा पा रहा था विदाउट रियली एनी सीरियस इम्पैक्ट, यहाँ पर वो केस नहीं है। विद द स्काउट 60 बॉबर जब मैं उन्हीं गड्ढों के ऊपर से उसी स्पीड में निकलता हूँ तो मेरे को रियर से एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग किकबैक फील होता है, जो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता। अब यहाँ पे राइड क्वालिटी ख़राब नहीं है, आपको जस्ट टूटे सड़कों के ऊपर से थोड़ा सा और धीरे जाना पड़ेगा, जो कि आपको बड़ी वाली स्काउट के साथ नहीं करना पड़ता है। Now let's come to the features section of this review, and this is going to be a short one because on this, the standard variant of the Indian Scout 60 Bobber, there aren't really a lot of features to talk about. All you get is dual channel ABS. Now if you do want a few more features with the Scout 60 Bobber, you will have to move up a trim, that is to the limited variant of the motorcycle, where you get aids like rider modes, you get traction control and even cruise control. Now for me, I'm not really complaining about the lack of features on the Indian Scout 60 Bobber, and that's quite simple. That's because the lack of traction control allows me to have a bit of fun, get a little naughty with the Indian Scout 60 Bobber. Now isn't that what motorcycling is all about? Now at the beginning of this video, I had asked a small question. Does the Indian Scout 60 being a smaller motorcycle dilute the experience of owning an Indian motorcycle, especially when you've already ridden something like the Sports Scout? Now in a handful of areas, the answer is yes. इसका जो engine है वो इतना effortless नहीं feel होता जितना कि इसका बड़ा engine जो 1250cc हमें बड़ी स्काउट में देखने को मिलता है वो होता है। इस मोटरसाइकिल के इसका engine काफ़ी है, बट प्लेफुल वो मैं नहीं कहूँगा। साथ ही साथ जो यहाँ पे ergonomics भी है, मोटरसाइकिल को छोटा बनाने के चक्कर में आपको थोड़े से क्रैम्प्ड ज़रूर फील होने लगते हैं, और साथ ही साथ जो रियर सस्पेंशन है उसकी भी लिमिटेशन आ जाती है। जहाँ पे हम राइड एक्सपीरियंस की बात करते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं मैं ज़रूर ये बात कहूँगा कि जो इंडियन स्काउट 60 बॉबर है वो बड़ी स्काउट्स को उस एक्सपीरियंस में मैच नहीं कर पाती है। बट जहाँ पे फिट एंड फिनिश की बात होती है, जहाँ पे क्राफ्ट्समैनशिप की बात होती है, वहाँ पे हमें इंडियन स्काउट 60 पे वो ही फिनिश देखने को मिलती है जो हमें बड़ी स्काउट्स पे देखने को मिलती थी। सो अगर आप एज अ पीस ऑफ आर्ट इस मोटरसाइकिल को खरीदना चाह रहे हैं तो फिर यस, द इंडियन स्काउट 60
will also do. And याद रखिएगा ये इंडिया में इंडियन की least expensive motorcycle है. But if you're after the riding experience, if you're chasing that riding thrill, then I would definitely say that the Indian Scout 60 Bob over here definitely dilutes that experience a little, and you should definitely go for a bigger Scout motorcycle.